Assalamu alaikum student. Today we will discuss about movement in plants. Movement in plants are basically of two types. One is the autonomic movement. Autonomic movement is due to presence of the internal causes or internal stimulus. While the other type is a paratonic movement. Paratonic movement are due to external causes. Autonomic movements are of three types. Number one is tactic movement, number two is turgor movements, and number three is a growth movement. Tactic movements are of further two types. Tactic movements may either be positive and negative. We consider the tactic movements are a positive if our plant is moved, if our plant or a plant organs like leaf, stem or any other part of the plant move towards the stimulus, then this is called a positive tactic movement. On the other hand, if it moves away from the stimulus, then this will be called a negative. Like roots of the plant are moved away from the source of light, so this is a type of the tactic movement. Movement of the entire cell or the organisms is called a tactic movement. This is the definition of the tactic movements. Tactic movement are of further two types. One is a phototactic movement. Phototactic movement are due to in response of stimulus of the light. If the movement of the plant is towards the source of a light, then we considered it as a phototactic movement. But if it is moved away from the source of light, then it is considered as a negative. Other type is a chemotactic movement. Chemotactic movement are due to in response of stimulus of the chemicals. This slide explain the example of the phototactic movement. In a phototactic movement, this is a passive movement of the chloroplast due to cyclosis. Actually, the process of a cyclosis help to absorb maximum light, and this maximum light is helpful for the fixation of the carbon dioxide that is used during the process of the photosynthesis. Light intensity and the direction both are the intracellular distributions of the क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का रेट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक लाइट इंटेंसिटी पे कि सूरज की रोशनी जो है वो कितनी ज़्यादा है और लीफ पर किस डायरेक्शन में पड़ रही है, और दूसरी उसकी जो है वो होती है हमारे पास अमाउंट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। Other example of the chemotactic movement is shown by the sperm of the liverworts, mosses or ferns towards the archegonia in response to stimulus of the nucleic acid which is released by the ovum. लीवरवॉर्ट्स, मोसिस और फर्न्स ये तीनों जो हैं ये ब्रायोफाइट्स से बिलोंग करते हैं। ब्रायोफाइट्स कौन से पौधे होते हैं? ब्रायोफाइट्स वो पौधे हैं जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इन एक्सेस चाहिए होता है। इनके जो मेल ऑर्गन्स हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल ऑर्गन है उसको बोलते हैं आर्चिगोनिया। अब स्पर्म और आर्चिगोनिया इन दोनों ने आपस में मिलना है तो देन फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा और न्यू प्लांट जो है वो डेवलपमेंट होगी। तो स्पर्म को आर्चिगोनिया तक जाने के लिए क्या होगा जी? जो ओवम है वो न्यूक्लिक एसिड को रिलीज़ करेगा। जब ओवम न्यूक्लिक एसिड को रिलीज़ करेगा तो वो क्या है, वो एक तरह से एक केमिकल सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है किसको? स्पर्म को, ताकि स्पर्म जो है वो आर्चिगोनिया को रिकॉग्नाइज करे यानी पहचान सके और उसके साथ मिलके जाइगोट बना सके, फर्टिलाइजेशन करवाए। फर्टिलाइजेशन से फर्दर जो है वो आगे जाइगोट और डेवलपमेंट ऑफ ओवम होगा। सेकेंड मूवमेंट इज़ द टर्गर मूवमेंट।
Turgor movement are due to change in turgor and size of a cell as a result of gain or loss of the water. There are two types of the turgor movements. One is a sleep movement. In case of the sleep movement, for example, the bean plants and a member of the legume family load their leaf in evening and raise them in morning. यानी शाम के वक़्त उनके पत्ते जो हैं वो झुक जाते हैं और सुबह को दोबारा से जो है वो फ्रेश अप हो जाते हैं. Other type is the rapid movement. In case of a rapid movement, leaves of the mimosa plant fold together. मिमोसा प्लांट के जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आप को जो है वो फोल्ड कर लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द स्लीप मोमेंट्स आर, इससे पहले कि मैं आपको स्लीप मोमेंट की एक एग्जाम्पल बताऊं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जान सकें पेल्विनस क्या होता है. पेल्विनस इज़ एक्चुअली द स्वलन पोर्शन ऑफ द पेट्यूल. पेट्यूल क्या, कौन सी जगह है? पेट्यूल स्टेम की वो जगह होती है जहाँ से लीफ जो है वो ओरिजिनेट हो रहा होता है. तो पेल्विनस क्या हुआ? दिस इज़ द स्वलन पोर्शन ऑफ द पेट्यूल एंड दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल. पिछले लेक्चर में क्या बताया था? पेरेन्काइमेटस सेल्स वो सेल्स होते हैं जो लाइव सेल होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं. सो Pulvinus is the swollen portion of a petiole which is composed of parenchymatous cells. When the turgor pressure is increased in the leaves, when the turgor pressure is increases in this pulvinus, it causes the leaves to become rise and they become horizontal, यानी ऊपर को उठ जाते हैं. This is the example which is shown from my left side as indicated by the cursor. यहाँ पे लीफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उठा हुआ है. कैसे? कि इसका जो पल्विनस था वहाँ पे प्लांट का टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो लीव्स हॉरिजॉन्टल हो गए. दूसरी साइड पे जो है वो ऑपोजिट क्या है? लीफ जो है वो वेल्ट हुआ है, यानी मुरझाया हुआ है. अदर एग्जाम्पल इज दी रैपिड मूवमेंट. In case of a rapid movement, potassium ions move which cause to leave the water out of a cell by exosmosis. Actually इसमें होता क्या है? This is an example of the form of example of rapid movement family mimosas. अच्छा, इसमें क्या होगा कि मिमोसा के लीव्स अगर आप देखो तो ये वेकअप हुए हैं. कैसे? कि ये जो पल्विनस था, पल्विनस क्या करता है कि ये पोटेशियम आयंस को जो है वो, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ द पोटेशियम आयंस जो है वो मौजूद होते हैं. जब एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन मौजूद होंगे तो क्या होगा कि पानी जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा. जब पानी सेल से बाहर निकल जाता है तो ये स्लीपिंग कंडीशन में आ जाते हैं, यानी खुद को फोल्ड कर लेते हैं. यानी solute concentration inside the cell is more and the water contents is less. अब डे टाइम क्या होगा? जब ये पत्ते वेकअप होते हैं, पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल डिक्रीज एंड द वाटर कंटेंट इज इंक्रीज. जब वाटर कंटेंट्स बढ़ जाते हैं तो ये फिर से रिच्ड बन जाते हैं और जब ये रिच्ड होते हैं तो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ द मूवमेंट इज अ ग्रोथ मूवमेंट. Growth movement is due to unequal growth on two sides of a plant organs like stem, roots and buds. यानी कुछ पौधों की stems, कुछ पौधों की roots बहुत गहरी होती हैं, कुछ का roots इतनी गहरी नहीं होती हैं लेकिन stem उनका बहुत तनावर होता है, और ऐसे ही कुछ birds की example है. Growth movements are of three types. One is the epinasty. Second one is a hyponasty and third one is a nutation. In case of a epinasty, as shown this is in example, upper surface of the leaves showed more growth, while in case of a hyponasty, lower surface of the leaves showed more growth as compared to upper surface. And in third case, that is a nutation. In nutation, the growing tip of the young stem moves
इट्स अ ग्रोथ इन अ जिग जैग फैशन। ये नॉर्मली जो हमारी बेलें होती हैं ना, वो ऐसी मूवमेंट जो है वो शो करती हैं, यानी वो जिग जैग फैशन में जो है ना, जिग जैग पैटर्न में वो ग्रो करना शुरू कर देती है। ग्रोइंग टिप ऑफ द यंग स्टेम्स मूव्स इन अ जिग जैग फैशन। Second basic type of the movement is a paratonic movement. Paratonic movements are due to external causes. There are further two types of the paratonic movement. One is the tropic movement and second one is the nastic movements. Now we will discuss one by one. First one we discuss about the tropic movements. Tropic is actually derived from a Greek word which means troops. Troops mean टर्न यानी मुड़ जाना। दिस मूवमेंट इज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द होल ऑर्गन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। दिस मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स इज मूव ऑर्गन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। देयर आर बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। वन इज अ फोटोट्रॉपिज्म. Phototropism, this is a movement of the part of a plant in response of a light, like stem or root. Second one is a thigmotropism. Thigmotropism is in response to stimulus of the touch. For example, the clumping veins. When they come in contact with some solid object, growth on the opposite side of the contact is increases. यानी जो बेलें ये दीवारों को चढ़ी हुई होती हैं, उनको सपोर्ट मिलती है ना, तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ग्रो करती हैं। कभी आप अगर अपने डेली रूटीन में अपने प्लांट्स को ऑब्ज़र्व करें तो आप देखें कि जो बेलें होती हैं, जिस साइड पे उसको सपोर्ट प्रोवाइड होती है, उस साइड पे उसके लीफलेट्स और लीव्स नहीं निकल रहे होते, बल्कि सपोर्ट के ऑपोजिट साइड पे जो है वो उसके लीव्स निकल रहे होते हैं। एंड थर्ड वन इज़ geotropism. Geotropism is actually due to in response of a growth. Root display the positive geotropism क्योंकि वो ज़मीन की तरफ बढ़ रहा होता है, अंडर अर्थ होता है, अंडर सॉइल होता है, while the shoot show the negative geotropism क्योंकि वो above the ground होता है। इसके अलावा ट्रॉपिक मूवमेंट्स की एक और टाइप भी है, that is also called a chemotropism. Chemotropism is also show its response towards a chemical, जिसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास हाइफी ऑफ फंजाई की है। और उसके अलावा एक और टाइप है इसकी, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है जी? मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस ऑफ द वाटर. Second type of the paratonic movement is a nastic movements. Nastic movements is due to non-directional movement in response of external stimulus. There are of two types. Number one is nascency. Nascency stimuli leading to differential growth. यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में डिफरेंशियल ग्रोथ होती है. प्लांट के किसी एक हिस्से में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, दूसरे में थोड़ी कम हो रही है. दिस इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टर्गर एंड द ग्रोथ चेंजेस. दिस nascency movement are of further two types. One is the photonesty. Photonesty is the basic principal stimulus is the photoperiod. यानी प्लांट जो है वो कितना टाइम पीरियड जो है वो अपना एक्सपोजर ऑफ सनलाइट के साथ जो है वो स्पेंड करता है. लाइक फ्लावर ओपन्स एंड क्लोजेस ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी. Second type is a thermonasty. Thermonasty is due to temperature. Flower of the tulip close at night because of a rapid growth in the lower side of the upper and inner bending of the petals. And second type of the nastic movement is hepatonastic. Hepatonastic movements are occur in response to contact. Example is include action of the Venus flytrap. Venus flytrap आपको पता है कि ये कार्निवोर प्लांट की एक एग्जाम्पल है. जैसे इंसेक्ट उसके पास आता है वो फ़ौरन से अपने जो है वो लीव्स को ओपन करता है और इंसेक्ट को जो है वो कैप्चर कर लेता है. Our next slide is a role of the plant growth substances in the plant movements.
मूवमेंट्स इज़ इन द प्लांट्स इज़ कंट्रोल्ड बाय प्लांट्स हार्मोन्स। हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी, तो प्लांट्स के पास भी हार्मोन्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द हार्मोन इज़ द ऑक्सन। Auxins perform following the functions. It involves in enlargement of the cell. It show a positive geotropism. Positive geotropism कौन शो करेगा? प्लांट्स के पार्ट में रूट्स शो करती हैं, तो क्योंकि रूट्स जो हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड जो है वो अंडर द अर्थ और टूवर्ड्स द ग्राउंड जो है वो मूव कर रही होती हैं। इन लोकेशन ऑर्गन के, प्लांट ऑर्गन को जो है वो लंबूतरा करने में उसकी हेल्प करता है। काज ऑफ द एपिनास्टी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे हम एक और बात भी ऐड करते चलें। नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा ऑक्सिन है ये रूट सेल्स की ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करता है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म ये किस सेंस में शो करेगा? जब हम सिर्फ और सिर्फ रूट की ग्रोथ को देख रहे हैं। और इसके अलावा जो है एक और हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं जिबलरिन। जिबलरिन हार्मोन जो है ये हाइपोनेस्टी में अपना जो है वो रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच।